Good morning, students. Welcome to Transportation Engineering video lecture. So, yesterday we were discussing about geometric elements, that is cross-sectional elements में Camber का discussion किया था. So we discussed about what is the meaning of camber, what is its significance, what is the camber value हम कैसे बताते हैं या even how much camber we should give, and that depends upon what factors, and why should we should not give steep camber. All these things points हमने discuss किया था. ठीक है. So one of your friend actually messaged me regarding camber. That is, he asked me that so whether camber is provided like in top layers or in bituminous layers only, or concrete pavement में देते हैं या हर तरह का road में देते हैं. So see, camber is you already know that it is a cross slope provided on the road. So this camber is provided in every type of road, whether it is a village road, whether it is a state highway, national highway, expressway, any type of road, whether it is a rural road, yeah, your urban roads. So you are going to provide the camber. So only thing is the value or the cross slope value जो है वो change होता है. जैसे कि and you know on what factors it depends. It depends upon the type of the road and the amount of rainfall. ठीक है. See, sometimes even in urban areas, it is very difficult to provide that steep camber sometimes because of drainage problem सब हो सकता है. So there are some limitations are there, especially when it comes to the junctions. आप उतना camber maintain नहीं कर सकते क्योंकि uncomfortable होगा, because every vehicles comes and join at that particular junction. तो coincide हो सकता है अलग अलग रोड का chambers. So there are some क्या बोलते हैं restrictions are there, but those things are not required at this particular time. Those are for higher studies के लिए रखते हैं. But basic concept इतना याद रखो कि हर एक layer, see, you know, if you take flexible pavement, तो flexible pavement का foundation layer रहेगा subgrade layer, उसके बाद ऊपर आएगा WMM, उसके बाद आएगा उसके ऊपर आएगा GSB, उसके ऊपर आएगा WMM, उसके ऊपर आएगा BC लेयर, कोई भी सुपीरियर लेयर आएगा, दैट इज बिटुमिनस कंक्रीट, ऐसा आएगा. सिमिलरली अगर आप कंक्रीट पेमेंट लिया तो नीचे सबसे पहले सबग्रेड लेयर आएगा, उसके ऊपर GSP लेयर आएगा, उसके ऊपर WMM लेयर आएगा, उसके ऊपर आपका कंक्रीट लेयर आएगा. तो इसके बारे में इन डिटेल बात करते हैं बाद में कंस्ट्रक्शन के चैप्टर में. सी, हर एक लेयर जो है, so whatever the camber you decided, whatever the camber you designed, whatever the value you got, वो हर एक लेयर के लिए प्रोवाइड करना है. So this is the one important layer. ऐसा नहीं कि टॉप लेयर में सिर्फ जो क्रॉस स्लोप दिख रहा है वो सिर्फ टॉप लेयर में नहीं रहता, वो हर एक लेयर से आता है. ठीक है. So that is most important, और इसके बारे में और बात करेंगे बाद में. ठीक है. तो ठीक है. Now we will continue. And okay, this is one doubt which your friend asked yesterday. So I cleared. I think आपको मैंने मैसेज भी किया था. इधर भी सबको अगर ऐसे डाउट है तो क्लियर करने के लिए अभी मैं बताया हूँ. दूसरी चीज, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके एक फ्रेंड डाउट पूछा था रिगार्डिंग बम्प इंटीग्रेटर में या पेमेंट अनइवननेस कैसे फाइंड आउट करते हैं. मैंने बोला था क्यूमुलेटिव वैल्यू लेते 150 सेंटीमीटर पर किलोमीटर ऐसा लेते. उसके बारे में मैं जब yesterday when I was teaching, I actually shown one video. Unfortunately, that particular video was not came on the presentation and nobody क्या बोलते हैं देखा नहीं है. I know you people are not watching the video. ठीक है. See, very few members are there. I'm not telling everyone is not watching the video. Very few members are there. They are watching the video in full length and they are honest for themselves. That is very important. खुद को ऑनेस्ट रखना और जो भी काम करते हैं उसको ऑनेस्टी से करना बहुत इम्पोर्टेंट है. सर उससे क्या मिलते हैं या आपका फ़ायदा क्या है, मेरा फ़ायदा, इट ऑल आपको फ्यूचर में पता चलेगा.
So only few members had seen the video, and I know remaining all upload होते ही थोड़ी देर के बाद, पहले तो तुरंत कर देते अटेंडेंस, अभी थोड़ी देर के बाद करते हैं, ऐसा लगेगा कि हमने वी आर सीन द वीडियो, ऐसा ठीक है, आपको जैसा लगता है वो करो, बिकॉज वो वीडियो में जो भी मैंने कल प्रेजेंटेशन लिया था उसमें एक वीडियो दिखाया था, वो वीडियो खुद डिस्प्ले नहीं हो रहा था, फिर भी किसी ने कुछ भी डाउट नहीं पूछा, सर वीडियो नहीं दिख रहा है, आपने जो वीडियो दिखाया आपको कुछ किसी को डाउट नहीं आया, क्योंकि majority of the students are not seen the video, just for the attendance purpose you are doing all these things. Keep it up, no problem, I don't have any problem, ठीक है. Whatever my responsibilities there, I'm doing that one, and हमेशा we hope that you will also do the same thing, but unfortunately majority of the students they are not interested, ठीक है. मैं बहुत बार आपको भी बोला हूँ आई थिंक क्लास में, इट्स लाइक घोड़ा को क्या पानी के पास लेके जा सकते हैं, पानी खुद हम पिला नहीं सकते, ठीक है. वट एवर इट कम्स प्लस और माइनस, इट डिपेंड्स ऑन यू एंड यू आर द सोल रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस थिंग्स, ठीक है. ठीक है. सो व्हाट आई थॉट इज वो वीडियो उधर डिस्प्ले नहीं हो रहा था, इसलिए अभी before I start the new topic or continue the class, I will just show this particular video, then I will continue with the previous this thing. I'll just play the video and I will show how it, see this is not actual bump integrator, this is roughness index find out करने का तरीका है, but don't see all these things, TIRI 00 ये मत आप देखो, ठीक है. Don't see all those things, only you see this animated portion, ठीक है. Okay, you can see the wheel is moving, तो समझो एक ऐसा undulations आया, ठीक है. You can see one more, तो समझो जा रहा है. Okay, so that means this undulation ऐसा आया. So imagine this is the level road और ये undulation नीचे जा रहा है, समझो एक 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, जितना भी है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर है, तो वो काउंट होगा, तो मतलब रिकॉर्ड होगा. बम्प इंटीग्रेटर के इंस्ट्रूमेंट में देयर इज क्यूमुलेटिव काउंट होता जाता है. तो समझो ये 3 सेंटीमीटर था, उधर लिख जाएगा वो 3 सेंटीमीटर था, ठीक है. इस वीडियो में सब ऐसा नीचे जा रहा है, ऊपर भी हो सकता है, ऐसा आके सिर्फ 1 सेकेंड जस्ट, ओके. अभी स्ट्राइट रोड जा रहा है, आगे ऐसा ऊपर भी जाके ऐसा आ सकता है, ऐसा नहीं कि हमेशा अंडुलेशन नीचे रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है. स्ट्राइट रोड ऊपर ऐसा नीचे हो सकता है. सो जैसे वो ऊपर जाएगा तो समझो वो भी एक 3 सेंटीमीटर था, तो काउंट होगा, क्यूमुलेटिव काउंट होता जाएगा सेंटीमीटर्स में या mm में, ठीक है. सो सिमिलरली क्यूमुलेटिव 1 किलोमीटर में कितने बार और कितना ऐसा अंडुलेशन आया, ठीक है, वो सब काउंट होता जाएगा. क्लियर है. So this is what I can say is this is the meaning of that undulation or payment unevenness. तो ये जो cumulative value रहता है इसको वो काउंट करते हैं and they will give this क्या बोलते हैं, they will give the value that is 150 सेंटीमीटर पर किलोमीटर रहना चाहिए या 2500 सेंटीमीटर पर किलोमीटर रहना है, जो भी उस स्टैंडर्ड्स मैंने बताया था, ठीक है. So that is about the particular doubt, ठीक है. So now I'll start with the PPT. Okay, so today I will start with a new topic that is about width of the payment. These are all like payment cross sectional elements, ठीक है. हाईवे ज्योमेट्री डिजाइन में आई थिंक 5 टाइप्स है, 5 पैरामीटर्स हम डिस्कस करने वाले थे. पहले वाला था पेमेंट क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट, सेकंड वाला था साइड डिस्टेंस, थर्ड वन था हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, फोर्थ वन था वर्टिकल अलाइनमेंट, फिफ्थ वन था इंटरसेक्शन के बारे में. करेक्ट है. स्टिल वी आर इन द फर्स्ट पार्ट, ठीक है. हाईवे ज्योमेट्री डिजाइन इज अ ह्यूज चैप्टर विथ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स है, सो यू नीड टू स्टडी प्रॉपरली. Okay, you're talking about the width of the payment. It depends on the width of the traffic lane and number of lanes. See, obviously payment means that particular road and that road का width कितना है, that depends upon the width of
traffic lanes. So obviously there are different traffic lanes रहेगा, correct? So that means एक second, I'll just okay, समझो this is वो one road ऐसा है, ठीक है? So I'll just showing. Okay, so that means see from here to here it is called as one lane, and from here to here it is called as another lane. So this is 2-lane road. ठीक है? So the width of the payment, so that is the width of the payment is from here to here. So now the width of the payment depends upon number of lanes, correct है ना? So number of lanes के ऊपर भी depend रहता है. So समझो this is one lane and this is second lane, first lane and second lane. So it depends upon the width of the traffic lane. What is the width of this one? Correct है? What is the width of this one? तो इन दोनों का width के ऊपर total width of the payment depend रहता है. And also number of lanes. So you can see one lane है तो width of the payment कितना रहेगा? So it is only this much. अगर 2-lane road है तो उसका width कितना रहेगा? From here to here. Correct है? So now imagine there is a median. ठीक है? बीच में एक मीडियन है, सॉरी एक सेकेंड, ओके undo. So I will take this is another median is there, okay, another road is there और बाजू में रोड है. So once again I will draw the straight नहीं आ रहा है, so no problem. So that means this is third lane, this is fourth lane, ठीक है? This is third lane, this is fourth lane. So this is median, this is median. So you can call this one as 4-lane, that is 1 2 3 4 4-lane divided carriageway, because बीच में divider है. 4-lane divided carriageway, ठीक है? कभी कभी 6-lane भी आ सकता है. सो इस तरफ 3 लेन रहेगा, इस तरफ 6 लेन रहेगा, सॉरी 3 लेन रहेगा. सो टोटल 6 लेन डिवाइडेड कैरेज वे. सिर्फ ये है तो 2 लेन कैरेज वे, नो डिवाइडर, ठीक है? सो दिस इज अ बेसिक पेमेंट टॉप व्यू. सो द टोटल विड्थ ऑफ द पेमेंट. सो नाउ वंस अगेन इफ आई एम टेकिंग टोटल विड्थ ऑफ द पेमेंट फ्रॉम this one to this one, this is the total width of the payment. So this total width of the payment obviously it depends upon the width of individual lanes plus number of lanes. कितना lanes, correct है ना? Okay, next. Lane width is determined on the basis of the width of the vehicle and minimum side clearance for safety. Okay, now question is this lane width, so that is from this point to this point, ठीक है? So from this point to this point जो है, so this width कैसे decide करते हो? That depends upon the width of the vehicle. एक vehicle का width के ऊपर depend रहता है, plus some side clearance. ये हम देखेंगे विथ फोटो इमेजेस में दिखाता हूं, ठीक है? इट डिपेंड्स अपॉन द विड्थ ऑफ द व्हीकल प्लस साइड क्लियरेंस, ठीक है? ये वर्ड का मैं मीनिंग बताता हूं. डन? ओके. मैक्सिमम विड्थ ऑफ द व्हीकल इज 2.44 मीटर. ओके, अभी क्वेश्चन इज आप विड्थ ऑफ द व्हीकल बोला, कौन सा व्हीकल लेना है, दैट इज इंपॉर्टेंट. सो इन इंडिया the maximum width of the vehicle, standard vehicle width standard values है, उसमें highest या maximum width of the vehicle is 2.44 meter, ठीक है? and that is truck. कार का नहीं, बाइक का नहीं, वैन का नहीं, बस का नहीं. the Indian standard vehicle for maximum width of the vehicle लेने के लिए in India we are considering the truck,
that is 2.44 meter, or you can take it as 2.45 or 2.5 meter, basically approximately 2.5 meter width. So that means आपने बताया कि lane width, तो from this point to this point lane width depends upon the width of the vehicle. So एक vehicle इसके अंदर बैठना है एक लेन के अंदर, so that means 2.5 मीटर. So that means 2.5 मीटर का vehicle इसमें बैठना है, और एक लेन है तो 2.5 मीटर बैठना है. तो अभी ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि 5 मीटर का रोड दे दो ताकि 2.5 मीटर का एक रोड व्हीकल, 2.5 मीटर का एक ट्रक, दोनों बैठ जाएगा. अरे दोनों का विड्थ 5 मीटर हो गया, एडिशन किया तो, और रोड का विड्थ भी 5 मीटर हो गया, तो इमेजिन करोगे क्या दोनों व्हीकल साथ में जाएगा? नहीं. तो दोनों के बीच में, करेक्ट है ना? सो दैट मीन्स, सो दोनों के बीच में देयर शुड बी अ गैप. तो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग. साइड क्लियरेंस रहना चाहिए फॉर सेफ्टी मीन्स, तो मतलब इस जगह पे भी साइड क्लियरेंस रहना चाहिए, बीच में भी साइड क्लियरेंस रहना चाहिए, फिर से इस तरफ भी साइड क्लियरेंस रहना चाहिए. ठीक है. सो मतलब ईच लेन का विड्थ डिपेंड्स अपॉन विड्थ ऑफ द व्हीकल प्लस साइड क्लियरेंस. होप आपको समझ में आ रहा है. ठीक है. नेक्स्ट, single lane width we are going to take it as 3.75 meter. Remember the values, standard values. Single lane का width, so that means समझो ये fourth lane है, तो इसका जो width है from this dot to this dot it is 3.75 meter. तो उसमें एक vehicle का width कितना था? 2.45 meter और 2.44 meter. Remaining is for आपका this side clearance for safety के लिए. वो सब है डायग्राम में, मैं बताऊंगा. सो 2 और मोर लेन्स, समझो अगर सिर्फ सिंगल लेन रोड है, भूल जाओ फर्स्ट लेन सेकंड लेन ये मीडियम थर्ड लेन कुछ भी नहीं है, एक सिर्फ सिंगल लेन रोड है, तब उसका विड्थ रहेगा 3.75 मीटर. अगर एक से ज्यादा लेन्स है तो ईच लेन का विड्थ हो जाएगा 3.5 मीटर लेन. ठीक है. सो दैट मीन्स इन दिस कंडीशन, इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम वॉट एवर आई रिटन, ठीक है, 1 second. So whatever I written here, so each lane, because there are 4 lanes are there, so each lane is 3.5 meter. So that means total width of the road this side is 7 meter, this side is 7 meter. 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 14 मीटर हो गया. बीच में मीडियन 1 सेकेंड स्टैंडर्ड से है 2.5 मीटर, 5 मीटर, ऐसा वो बाद में देखेंगे. डन. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट. नंबर ऑफ लेन रिक्वायर्ड डिपेंड्स ऑन द ट्रैफिक वॉल्यूम. सर अभी सिंगल लेन, 2 लेन, 3 लेन, 4 लेन डिवाइडेड कैरेज वे, 6 लेन डिवाइड, किसके ऊपर डिपेंड रहता है? ऑब्वियसली ट्रैफिक वॉल्यूम. ज्यादा ट्रैफिक है तो ज्यादा ट्रैफिक लेन प्रोवाइड करना पड़ता है, ज्यादा बड़ा रोड देना पड़ता है. करेक्ट है. So in some highways, traffic separators or medians are provided between lanes. Then road width depends on pavement width and the width of the separator. Same thing. मैंने अभी तक ये जो डायग्राम लिखा अभी तक और रब नहीं किया हूँ डायग्राम को, क्योंकि मे भी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, बट जस्ट कॉन्सेप्ट याद रखने के लिए. So in some highways where traffic separators are there, that means this is the condition. In national highway, state या कोई भी एक रोड में अगर मीडियन है, so total width of the pavement is nothing but the width of the road plus, that means width of the road is from here to here and here to here, plus width of the median. So total width of the road is, I don't know which color to take. Okay, pink lete. Total width of the road is from here to here. So that means इसका 7 मीटर हो गया, इसका 7 मीटर हो गया, बीच में समझो 5 मीटर है, so 7 plus 7 14, 14 plus 5 19. So total width of the road is 19 meters. Yeah, width of the pavement is 19 meters. This is the concept. Done. So I will rub all these things. Clear? So now
विल मूव ऑन टू द डायग्राम्स, तो इजीली आपको दिख जाएगा. सो यू कैन सी हियर, सी सिंगल लेन रे, क्रॉस सेक्शन ले रहा हूँ, सिंगल लेन है, करेक्ट है. सो आई टोल्ड यू इफ इट इज सिंगल लेन रोड इट इज 3.75 मीटर. So how you got 3.75 meter? 2.5 meter is your width of the vehicle. I told 2.44 a maximum, but approximately you are going to take 2.5 meter. So 2.5 meter vehicle का width हो गया, तो आजू बाजू में 0.625 मीटर 5.625 मीटर का आप सेफ्टी बफरेज दे रहे हो, और 625 mm 625 mm. So 2.5 plus 625 0.625 meter plus 0.625 gives 3.75 meter. So this is the single lane pavement width. ठीक है. वही अगर टू लेन है, so you can see from here to here टू लेन है. So टू लेन कब देने वाले हो? Obviously टू व्हीकल्स के लिए. So this is one vehicle, this is one vehicle, 2.5 meter 2.5 meter, right? So अभी इन दोनों के बीच में मिनिमम एक गैप रखना चाहिए, वो कितना हो गया? 1 मीटर. ठीक है. प्लस इस व्हीकल के लेफ्ट साइड में जहां पे रोड एंड होता है, तो मिनिमम आधा मीटर का गैप रहना चाहिए, आधा मीटर का गैप रहना चाहिए. So that means your total width is 0.5 meter, 2.5 meter, that is 3 meter. 3 meter plus 1 meter, 4 meter. 4 meter plus 2.5 meter, 6.5 meter, 6.5 meter plus half meter, 7 meter. So total width of the road is 7 meter. So each lane is divided by 2, 3.5 meter, 3.5 meter. इधर सिंगल लेन है तो ईच लेन, सिंगल लेन है तो लेन विड्थ कितना रहेगा? 3.75 मीटर रहेगा. मल्टी लेन, मोर देन वन लेन है तो ईच लेन विल बी 3.5 मीटर. होप आपको समझ में आया. ठीक है. सो सेम डायग्राम है, इधर भी लिखा हूं, इधर विथ 2.44 मीटर लेके किया. ठीक है. सो यू कैन सी हियर these are the IRC standards. Width of the carriageway recommended by IRC. So that means if it is a single lane road 3.75 meter, if it is two lane without raised curb 7 meter. मतलब एंड में, एक सेकेंड आई जस्ट नीड टू गो, हाँ एंड में अगर समझो इधर कर्ब स्टोन नहीं है, कैन यू सी द कर्ब स्टोन हियर? नहीं, करेक्ट है. सो दैट मीन्स कर्ब स्टोन बोले तो इधर समझो ऐसा, वो ऐसा कर्ब स्टोन नहीं है, सो इट इज ओपन. सो दैट्स व्हाई इट इज 7 मीटर. ठीक है. सो कर्ब स्टोन नहीं है इसलिए 7 मीटर है. अगर कर्ब स्टोन आ गया ना, तो मतलब राइज्ड कर्ब्स आ गया ना, तो और एक आधा मीटर बढ़ेगा, 25 सेंटीमीटर इस तरफ, 25 सेंटीमीटर इस तरफ. सो मतलब 25 सेंटीमीटर इस तरफ. आई ड्रॉ वंस अगेन, मैं बहुत धीरे धीरे कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आना चाहिए बोल के. सो समझो ये कर्ब स्टोन ऐसा आ गया, तो आपको इधर समझो इधर ही खत्म होता है रोड, ये 25 सेंटीमीटर इधर गैप रखते हैं. आप जाके रोड्स में देखो, जहाँ पे कर्ब स्टोन है, एक वाइट लाइन और कर्ब स्टोन के बीच में थोड़ा गैप रहता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर. तो सेम इस तरफ कितना 25 सेंटीमीटर, इस तरफ 25 सेंटीमीटर, आधा मीटर इंक्रीज होता है. सो 7 मीटर प्लस 0.5 दैट इज so 0.25 that becomes 7.5 meter. सो इंटरमीडिएट कैरेज वे है, तो मतलब समझो कुछ जगह पे ऐसा हो सकता है कि आपको 3.75 मीटर दे नहीं दे सकते, और 4 डबल लेन देने के लिए 7 मीटर हो जाएगा, 7 मीटर नहीं दे सकते. सो इंटरमीडिएट लेन का 5.5 मीटर प्रोवाइड कर सकते हो. ठीक है. सो माइनर रोड्स पे आप ऐसा कर सकते हो. तो मल्टी लेन पेमेंट्स यू नो, 6 लेन हाईवे रहने दो, 4 लेन हाईवे रहने दो, सो ईच लेन विल बी 3.5 मीटर पर लेन रहेगा. ओके. So this is we are talking about the medians, or we will call it as a separators. So medians are also called as separators. So what is the main reason of providing medians is to avoid head-on collision. So obviously बीच में medians नहीं है तो लेन चेंज करते रहते हैं, उधर से अपोजिट से व्हीकल आता रहता है, इसलिए एक्सीडेंट होने का चांसेस रहता है, वो भी हेड-ऑन कोलिजन बोलते हैं. आमने सामने जो टक्कर एक्सीडेंट होता है उसको हेड-ऑन कोलिजन बोलते हैं. सो सिंस टू अवॉइड ऑल दोस थिंग्स वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द सेपरेटर्स. ठीक है. सो व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ द मीडियंस, जो मैंने अभी ड्रॉ किया था डायग्राम, तो उसका पूरा ऐसा
what should be the width of that one means if it is a rural highway, that means any roads outside the city limits. So 5 meter, 3 meter where land is restricted. That means 5 meter is desirable है, but if you don't have that much of land restriction है, ऐसा कुछ है तो at least 3 meter provide करना है. ठीक है? When it comes to bridges, you can reduce it to 1.2 to 1.5 meter. The main reason behind this one is when it comes to the bridge, it is a concrete structure. So if you increase the width, that is the width of the median increase किया तो obviously width of the bridge increase होगा. तो once the width of the bridge increase होगा तो cost of the bridge भी increase होगा. That means cost of the construction project ज़्यादा हो जाएगा. इसलिए bridges, ऐसे भी bridges में कैसा है, यू आर गोइंग टू रिड्यूस द स्पीड. नॉर्मल जो रोड पे रहता है तो उससे कम स्पीड में ब्रिजेस में जाना पड़ता है. सो दैट इज द स्टैंडर्ड्स. सो दैट्स व्हाई द मीडियन विड्थ जो है वो उसको हम रिड्यूस करके रखते हैं. दैट इज 1.2 टू 1.5 मीटर प्रोवाइड करते हैं. व्हेन इट कम्स टू अर्बन हाईवेज, दैट इज विद इन द सिटी लिमिट्स, से 1.2 मीटर फॉर पेडेस्ट्रियंस देना है द मीडियंस. सर 1.2 मीटर फॉर पेडेस्ट्रियंस बोले तो मतलब पेडेस्ट्रियंस किधर से है? पेडेस्ट्रियन बोले तो जो वॉक करते हैं, रोड यूज करते रहते हैं. ठीक है? सो उनके लिए 1.2 मीटर मतलब व्हाट इज द नीड ऑफ दैट वन मीन्स, से बेसिकली क्या होता है, व्हेन दे विल क्रॉस द रोड, तो समझो अभी वो 4 लेन रोड है, तो आप लोग भी बहुत बार आप जब रोड क्रॉस करते हो तो एक रोड क्रॉस करने के बाद जाके बीच में रुकते हो. सो वो रुकने के लिए थोड़ा जगह रहना चाहिए. सो दैट इज व्हाई यू नीड टू प्रोवाइड सम स्पेस फॉर द width of the road should be that, sorry, pedestrian के लिए median should be 1.2 meter रखना है. Otherwise 4 to 7.5 meter for protection of the vehicle. So it is too much, but that's why you can see here ultimately that at least 1.2 meter absolute minimum desirable is 5 meter तक देना है, but minimum 1.2 meter provide करना है. But nowadays even that 1.2 meter is also impossible to provide. That's why you can see there are some curb stones provide करते हैं. ठीक है? Okay, this is the actual photo. You can see, one second. So this is 1 lane. Okay, this is 2 lane. This is 3 lane. This is 4 lane. ठीक है? And this is median. So that means this is 1 lane width is 3.5 meter. इसमें भी और कुछ पॉइंट्स है, इधर आपको नहीं दिख रहा है, मड दिख रहा है, मैं इधर बताता हूँ. सो दिस इज 1 लेन. ठीक है? दिस इज 2nd लेन. सिमिलरली इधर भी रहेगा. ठीक है? सो फ्रॉम हियर टू हियर इट इज 3.5 मीटर. From here to here it is 3.5 meter. And I told you, if it is a curb stone है, yeah, this is, you can see this is a longitudinal lane है, marking है, it is also called as shy lane. So you can see the छोटा सा जो gap दिख रहा है, this is of at least 20 centimeter का एक gap रहता है. Similarly इधर भी रहता है. And this diagram is very important है, आगे भी use होगा. ये जो portion दिख रहा है, ठीक है, this is called as shoulder, this is also called as shoulder. ठीक है? So the only difference is, ठीक है, so ये this is earthen shoulder, this is earthen shoulder, this is not earthen shoulder, it is metal. There is particular word मैं बाद में बताता हूँ क्योंकि अभी वो टॉपिक नहीं आया है, don't worry. So this is 1st lane, 2nd lane, 3rd lane, 4th lane with median. So this is 4 lane with the divided carriageway. You can see the width of the carriageway कितना रखा है. ठीक है? It is almost 5 meters or something. Clear? So this is your shoulders. These two, both this black patch and this one. जो भी ये white line के बाजू में है ना, this is shoulder. So आपका width payment is this much only. उसके बाद shoulder आएगा. Paved shoulder बोलते हैं इसको. Sorry, भूल गया था. अभी याद आया. This is paved shoulder. This is unpaved shoulders. Paved shoulder बोले तो this is payment. Payment का जो quality है ना, वही quality रहेगा. But एक्स्ट्रा विड्थ दिया रहेगा. दिस इज कॉल्ड एज पेव्ड शोल्डर्स. याद रखो, पेव्ड शोल्डर्स. दिस इज अर्दन शोल्डर. इधर भी है, वो मार्किंग चला गया बस. ठीक है? सो देयर इज अ पेव्ड शोल्डर्स प्लस अर्दन शोल्डर्स. केम्बर एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड हियर. हियर केम्बर कैसे प्रोवाइड किया रहता पता है? ऐसा लैटरल डायरेक्शन.
ठीक है, ओके। दिस इज अबाउट विड्थ ऑफ द पेमेंट के लिए। तो देखते हैं और क्या क्या है। Sorry, hope you saw this one and you understood. See, in urban roads you can see, मैंने बताया था कि 1.2 मिनिमम देना है, बट इट इज इम्पॉसिबल। जब आप रोड क्रॉस करते हो तो इधर आके रुकते हो, इसलिए थोड़ा बहुत रहना चाहिए। और 1.2 मीटर और भी एक कुछ पॉइंट्स है, क्योंकि कभी कभी ट्रैफिक जंक्शन में जो ट्रैफिक लाइट्स आप इंस्टॉल करते हो उसके लिए जगह चाहिए, तो इसके लिए 1.2 मीटर का स्टैंडर्ड्स बताता है। ठीक है, सो यू कैन से, अभी देखो इतना इस पे आके आप सर्कस करना पड़ेगा। करेक्ट है, भाग के आओ, इधर रुको, अरे 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 ऐसा सर्कस करो, मिला मतलब ग्रिप नहीं मिला तो आगे जाओ, कोई ठोक के जाएगा। सो दीज आर ऑल कर्ब स्टोन्स। आराम से व्हीकल इधर से घूम के भी जा सकता है। हाँ, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग, कर्ब स्टोन्स। हाँ, अभी आएगा। See, it indicates the boundary between the pavement and the shoulder or islands or footpath. Obviously, see, this acts as a boundary line. See, this is the pavement road है और ये फुटपाथ है, इन दोनों के बीच में जो बाउंड्री लाइन है, तो इट इंडिकेट्स दैट बाउंड्री लाइन। These are called as curb stones or curb. ठीक है, sometimes even it is between the pavement and the shoulder also. पेमेंट और शोल्डर के बीच में भी एक्ट करता है। सिटी रोड्स में इट कम्स विथ फुटपाथ कंसिडर करते हैं। इफ इट गो अवे फ्रॉम द सिटी एरियाज इट विल बी एक्ट्स एज अ शोल्डर एंड पेमेंट। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ, और डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस। सो थ्री टाइप्स है। द फर्स्ट वन इज लो और माउंटेबल टाइप। ठीक है, सो दैट मीन्स अलो द ड्राइवर टू एंटर द शोल्डर विथ लिटिल डिफिकल्टी, जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में देखा। so, इसका मतलब आराम से आप इसके ऊपर से चले जा सकते हो, शोल्डर के ऊपर जा सकते हो या फुटपाथ के ऊपर जा सकते हो। ठीक है, सो ऐसा है तो दिस इज कॉल्ड एज लो और माउंटेबल टाइप। दैट मीन्स यू कैन माउंट दैट पर्टिकुलर थिंग। सो हाइट 10 सेंटीमीटर रहेगा। दैट मीन्स फ्रॉम द टॉप बॉटम ऑफ दिस लेन टू ये जो है, सो दिस विल बी 10 सेंटीमीटर। ये जो हाइट है दिस विल बी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सो आ जाओ। ओके, सो दिस इज 10 सेंटीमीटर। दिस इज माउंटेबल, provided at medians longitudinal drainage schemes. Okay, this is obviously provided at the medians and also at the drainage schemes. Second one is semi-barrier type. The first one is low or mountable type. Second one is semi-barrier type. इसमें कैसा है, provided on the periphery of the roadway where pedestrian traffic is more. So obviously vehicles उतना नहीं जाना चाहिए जहाँ पे pedestrian traffic ज़्यादा है, उधर semi-barrier type provide करते हैं। ठीक है, सो सेमी बैरियर टाइप का हाइट कितना रहेगा, 15 सेंटीमीटर रहेगा। सॉरी इधर गलत आ रहा है। सो दिस वन, उसका हाइट 15 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, अलो द ड्राइवर टू क्रॉस विथ सम डिफिकल्टी, तो थोड़ा बहुत डिफिकल्टी से व्हीकल चढ़ सकता है इसके ऊपर। ठीक है, पहले वाला में तो आसानी से जा सकता है, इसमें थोड़ा डिफिकल्टी होगा। द थर्ड वन इज दिस बैरियर टाइप, तो उसका हाइट 20 सेंटीमीटर है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज्यादा मैं इसको ये खींचूंगा नहीं। से डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन बोले तो क्या है इसमें, कैसा है, थ्री टाइप्स है। फर्स्ट वन इज माउंटेबल टाइप है, जहां पे उसका हाइट रहेगा 10 सेंटीमीटर, आसानी से इसके ऊपर से व्हीकल्स जा सकता है। सेकेंड वन इज सेमी बैरियर टाइप है, उसका हाइट है 15 सेंटीमीटर, थोड़ा मुश्किल लगेगा बट जा सकते हैं। द थर्ड वन इज बैरियर टाइप, उसका हाइट है 20 सेंटीमीटर एंड इट इज डिफिकल्ट टू द व्हीकल्स टू क्रॉस, और उसके ऊपर से जाने के लिए मुश्किल होगा। ठीक है, बट क्या बोलते हैं, हम लोगों के लिए मुश्किल कुछ नहीं है। आप देख सकते हो, आप ही बहुत लोग, आप लोग ये किया रहेगा, जैसे इधर थोड़ा ट्रैफिक जाम हो गया, इसके ऊपर चढ़ के जाते हो, कितने भी मुश्किल रहने दो, 25 सेंटीमीटर रहने दो, ट्राई कर करके निकल जाते हैं। या कुछ लोग और भी शाने रहते हैं, वो क्या करते हैं, इधर एक पत्थर रख देते और उसके ऊपर भी चढ़ के चले जाते हैं। करेक्ट है ना? सो ऑल दिस थिंग्स आर इंडिया में चलता है, स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करते। नेक्स्ट वन इज रोड मार्जिन्स। रोड मार्जिन्स के अंदर बहुत सारा पैरामीटर से बताया था। द फर्स्ट वन इज शोल्डर। मैंने बताया था कि याद रखो, शोल्डर्स, पेव्ड शोल्डर और अनपेव्ड शोल्डर दोनों
बताया था. So shoulders provide structural stability and support to the edges, particular to the granular layers. Okay, if possible, I need to draw the diagram. ठीक है, मैं करता हूँ. The capacity, the main intention of providing the shoulders is it will give the stability or it will give the support to the granular layers. मैंने बताया था जो पेमेंट के नीचे जो बहुत सारा फाउंडेशन लेयर्स है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है शोल्डर्स. एंड ऑल्सो द कैपेसिटी ऑफ द मेन कैरेज वे, ये याद रखो, कैरेज वे एंड द ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ द व्हीकल इंक्रीजेस. So if we provide the proper shoulders, it will increase the capacity of the road and also it increases the better speed provide karega. See how means, just I need to go back to that photo, I don't know. Okay, see if you provide these shoulders ना, तो ये मैंने पहले ही बोला था, ये सिर्फ टॉप लेयर में नहीं है, ये पूरा ये जो रोड जितना डेप्थ में गया ना उतना डेप्थ में गया है. जब ये रोड कंस्ट्रक्शन करते रहते हो, इसके अंदर जो एग्रीगेट प्रोवाइड करते हो वो बाहर नहीं जाना चाहिए, ये प्रोवाइड उसको रोकता है. दैट्स व्हाई इट इज सपोर्टिंग लेयर रहता है, सपोर्ट करता है ग्रैनुलर लेयर्स को. सेकंड वन, ये लेयर्स प्रोवाइड, जब शोल्डर्स आप प्रोवाइड करते हो वो कैपेसिटी इंक्रीज करते हैं. कैसे इंक्रीज करता है? समझो आप गाड़ी चला के आ रहे हो, आपका गाड़ी खराब हो गया. सो अगर आप समझो ये दोनों इधर नहीं है तो आप गाड़ी आप इधर ही स्टॉप करोगे. सो ऑब्वियसली व्हीकल्स ऐसे आपको घूम कर जाना पड़ेगा, तो टोटल मूवमेंट के लिए, ट्रैफिक मूवमेंट के लिए डिस्टर्बेंस होगा, तो कैपेसिटी ऑफ द रोड डिक्रीजेस एंड ऑल्सो ये द ट्रैफिक जैम, ये स्लो मूविंग ट्रैफिक हो जाएगा तो स्पीड भी रिड्यूस हो जाएगा. वही अगर आपका व्हीकल खराब हो गया तो आप इधर शोल्डर्स प्रोवाइड करते हैं तो इधर लेके आ गए ना, तो दिस क्लियरेंस जो रहता है वो उतना ही रहेगा, तो वो आराम से गाड़ियां जाता रहता है. आप बहुत बार देखा होगा ऑन द रोड पे कुछ व्हीकल खराब होकर रुका है तो आपको कितना अनकंफर्टेबल फील होता है, स्पीड कम करते हो, ट्रैफिक जाम क्रिएट होता है. वही अगर एक खराब गाड़ी साइड में रुका है, जो रोड से बाहर रुका है, तो ऑब्वियसली आप फ्रीली मूवमेंट रहता है. सो दैट इज द मेन पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग द curbs, sorry, what we'll call shoulders. Okay, shoulders serves as emergency lanes for vehicle compelled to be taken out of the main carriageway. That's why I told you it acts as an emergency lane. गाड़ी खराब हो गया तो साइड में लगाओ emergency lane जैसे. Shoulder also act as a service lanes for vehicles that are disabled, so you can do the repair works, all those things at that particular location. So you can see here, this is the main road है, ठीक है, एंड दिस इज द पेव्ड शोल्डर है एंड दिस इज अनपेव्ड शोल्डर है, अर्दन शोल्डर है, ठीक है. इसका क्वालिटी जो है वही क्वालिटी इधर रहता है. उससे आप गाड़ी साइड में भी लगाए ना तो बाबा इधर गाड़ी मतलब रोड क्या बोलते हैं फेलियर होगा, ऐसा कुछ नहीं है. इट टेक्स द लोड बिकॉज द सेम क्वालिटी है, ठीक है. मिनिमम वर्थ एज पर IRC स्टैंडर्ड इज 2.5 मीटर. So this has to be 2.5 मीटर. क्यों? अगर आपका एक व्हीकल का विड्थ कितना है 2.5 मीटर, so that means कोई भी एक व्हीकल थोड़ा खराब हुआ तो आके पूरा व्हीकल इधर रुकना है 2.5 मीटर. ऐसा नहीं कि थोड़ा एक व्हील इधर रुका है पूरा बाकी का बॉडी इधर है, ऐसा नहीं, पूरा व्हीकल इस जगह में फिट होना. इसलिए IRC स्टैंडर्ड सेज द शोल्डर विड्थ शुड बी 2.5 मीटर, ठीक है. So next one is road protection और safety barriers में guardrails आता है. So guardrails are provided at the edges of the shoulders when the road is constructed in embankment. So better I will show the photo. So these are all guardrails. Especially आप इस तरह का कहाँ पे देखा होगा जब roads are constructed in embankments. अभी देखो इधर अगर guardrails provide नहीं किया है तो obviously आप थोड़ा स्पीड में है and कंट्रोल नहीं मिला गाड़ी तो नीचे गिर सकते. So this is you have to provide these guardrails. So when the height of the fill exceeds 3 meter, उसमें भी embankment का height more than 3 meter है तो you can go with this type of guardrails. The next one is footpath or sidewalk. ठीक है, एक second. In order to provide safe facility to pedestrians to walk along the roadway, footpaths or sidewalks are provided in the urban areas. Most probably the footpaths are provided in the urban area because only in urban area pedestrian movement ज़्यादा रहता है. Even the accidents reduce करता है क्योंकि urban area में लोग अगर रोड के ऊपर घूम रहे तो accident होने के chances रहता है. That's why they will provide the footpaths. But unfortunately, once again in India कैसा है footpath, it is not meant for pedestrians.
इधर सब क्या बोलते हैं, चाय वाला ये वो बेच के सामान कुछ भी बेचते रहते हैं, या इलेक्ट्रिक पोल रहता है या गार्बेज रहता है, सो मेनी थिंग्स विल बी देयर। तो ऑब्वियसली द पेडेस्ट्रियन इधर मूव नहीं कर सकते, यू हैव टू गो दिस साइड। वन सेकेंड आई विल पॉज इट। सर हेलो, सो दिस इज फुटपाथ, ठीक है। सो एब्सोल्यूट मिनिमम विड्थ ऑफ द फुटपाथ इज 1.5 to 2 मीटर, यू कैन सी 1.5 to 2 मीटर रहना चाहिए। एंड ऑल्सो यू नीड टू प्रोवाइड क्रॉस फॉल, दैट मीन्स केम्बर, उसमें भी एक क्रॉस फ्लो प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि पानी इधर भी गिरा तो नीचे उतर के ड्रेनेज में जाना चाहिए, ठीक है। 2.5 to 3% रहना चाहिए, नहीं तो लोग गिरेंगे बोल के, स्किड रेजिस्टेंस कम रहेगा। साइकिल ट्रैक्स पूछो मत इंडिया में साइकिल ट्रैक्स। Okay, cycle tracks are provided in the urban areas where the volume of the cycle traffic is more. Obviously, cycle track कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जब साइकिल का जो वॉल्यूम है ज़्यादा रहेगा। मिनिमम विड्थ इज 2 मीटर इज प्रोवाइडेड, 2 मीटर प्रोवाइड करना है सिर्फ साइकिल ट्रैक के लिए। ये तो देखो, ये ऐसा प्रोटेक्शन भी दिया है इधर। देर आर सम हाईवेज इन सम अदर कंट्रीज, ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज, यू बिलीव इट और नॉट, समझो, इमेजिन इफ द मेन रोड है, बीच में विदाउट प्रोटेक्शन एक छोटा सा ऐसा पैच रहता है, और दैट इज फॉर साइकिल के लिए, फिर भी नो वन डेयर्स टू एंटर इनटू द साइकिल ट्रैक। सो दे आर सच ए वंडरफुल क्या बोलते हैं पीपल है, दे डोंट ब्रेक द rules and regulations. These are our parking lanes. Parking lanes are provided on urban roads to allow the vehicle parking. ये बाद में आएगा और भी डिस्कस करते हैं। For parallel parking, the minimum lane width should be 3 मीटर, ठीक है। तो पार्किंग का सेपरेट टॉपिक आता है, डिस्कस करेंगे। These are bus bays. Once again पूछो मत, प्रोवाइड किया रहता है, बट लोग इधर नहीं रहते, सब रोड पे रहते, तो ऑब्वियसली बस पहले जहां पे रुकता था उधर ही रुकता है, या उससे ज्यादा अंदर आके रुकता है, रोड में ही रुक जाता है, क्योंकि लोग इसके ऊपर बस बेस को यूज नहीं करते प्रॉपर से, या ड्राइवर्स लोग एक बस रुका है तो मैं उसके आगे जाके पिकअप करना है बोल के वो बंदा इधर रुका है तो वो इधर रुकेगा। मस्त है इंडिया में, मस्त। अरे इसमें ये ऐसा टिल्ट नहीं आता है, टिल्ट आता था अच्छा रहता था। अच्छा ऐसा आता है क्या, ठीक है, जाने दो। I don't want to do some research on this. And bus base should be located at least 75 meter away from the intersection. So समझो आगे इंटरसेक्शन है, एक सिग्नल है, तो एटलीस्ट 75 मीटर आगे रहना चाहिए। हमारे इसमें कैसे इंटरसेक्शन में ही बस बेस है, उधर ही स्टॉप दे देते, करेक्ट है ना। तो ये सब स्टैंडर्ड्स है। Laybys. So laybys are provided near the public conveniences with guide maps to enable drivers to stop clear of the carriageway, which should be 3 meter at least 30 meter length with 15 meter end tappers on both sides. So this is laybys, ठीक है, प्रोवाइडेड नियर द पब्लिक कन्वीनियंस विद गाइड। सो समझो आपको जाते जाते, मतलब समझो आपको कुछ इंफॉर्मेशन देखना था, रोड पे रुकने के बदले में ऐसे थोड़ा साइड में आके गाड़ी पार्क करके स्टॉप क्लियर ऑफ द कैरेज वे, वही इधर आके रुको वो सब। सो उसके लिए 3 मीटर का विड्थ मिनिमम देना है ऐसा, एंड बोथ इसमें टैपरिंग रहना चाहिए, मतलब धीरे 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 अंदर आना चाहिए और धीरे धीरे वापस मर्ज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि परपेंडिकुलर में घुसो सडनली बाहर आ जाओ, ऐसा नहीं रहना चाहिए। दिस इज एम्बैंकमेंट स्लोप्स। So this is embankment slopes. So I told you, if the embankment height is more than 3 meter, you need to provide the guardrail. So for safety consideration, the desirable slope is 1 in 3. So this is 1 in 3 रहना चाहिए slopes। अगर जगह है तो, अगर नहीं है तो you need to go for RE walls, ठीक है, वो बाद में देखते हैं। Okay, that's it. Next is width of the road or formation width है, ये मैं tomorrow once again I will continue, ठीक है। वो आपको समझ में आया। सो वंस अगेन अटेंडेंस, कुछ लोग का अटेंडेंस मैंने कल बताया था नहीं दिया हूँ,
सो वंस अगेन आज फिर से बता रहा हूँ, आज अपलोड कर रहा हूँ तो कल विद इन 3 o'clock आपको अटेंडेंस देना है, ठीक है। एंड अटेंडेंस शुड बी रिटर्न एज लाइक डिवीजन ए डिवीजन 01, A01, B01, A11, B11 ऐसा लिखना है, ठीक है। होप आपको समझ में आया। टेक केयर, ठीक है। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।